Hi everyone, welcome to the channel. Today we are going to look at the class 9 poem from the book Beehive, A Legend of the Northland by Phoebe Carey. This is an old story, or you can say it is a legend told in the form of poem. It is about a cold place, a very hungry saint named Saint Peter, and a woman who was too greedy to share a single piece of cake. It is a quick story, but it has a huge lesson about being kind. So get ready because we are going to break down this famous poem line by line. So let's get started. In this video, we are going to cover introduction about the poem, about the poet, theme or central idea of the poem, short summary, explanation of the text stanza wise with word meaning, literary devices or figures of speech used in the poem, and last but not the least, message of the poem. Before we give any introduction about the poem, please look at the map because the title of the poem is A Legend of the Northland. So you should know where Northland is. It is near about the area of North Pole. अर्थ को के बारे में अगर आप ग्लोब देखें तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, तो नॉर्थ पोल का जो एरिया है वही नॉर्थलैंड है जिसके बारे में इस पोएम में बताया गया है. नाउ इंट्रोडक्शन अबाउट द पोएम. अ लेजेंड ऑफ नॉर्थलैंड इज़ अ बैलेड. लेजेंड मीन्स ओल्ड स्टोरी, एंशेंट स्टोरी. तो नॉर्थलैंड की जो ये एक छोटी सी कहानी है, पोएट ने इसे बैलेड फॉर्म में लिखा है. बैलेड इज़ अ नरेटिव पोएम विच टेल्स अबाउट द स्टोरी. सो इट इज़ अ पोएम नरेटिंग अ स्टोरी इन शॉर्ट स्टैंजाज. Ballad is such kind of poem that tells a story in short stanzas, and in the poem all stanzas comprise 4 lines. So stanzas जो हैं वो 4 lines के हैं. In total there are 16 stanzas in this poem, and these stanzas will tell us a story. This story is of Northland area जिसके बारे में मैंने आपको मैप में क्लियर कर दिया है. It is near the North Pole. This exact place is not specified, but Northland means near North Pole. Areas near North Pole, northernmost part of the earth. Legend means a historical ancient story which is very old and has been passed on from generation to generation. जैसे आपके इंडिया में पुरानी एंशेंट जो कहानी है, माइथोलॉजिकल जो होती हैं, रामायण महाभारत, एक जनरेशन दूसरे जनरेशन को इसको पास करती जाती है. इसी तरह से ये नॉर्थलैंड की कहानी है जो जनरेशन टू जनरेशन पास की गई है. नाउ अ स्मॉल इंट्रोडक्शन अबाउट द पोएट. Phoebe Carey is an American poet and was younger sister and collaborator of fellow poet Alice Carey. एलिस कैरी के साथ ये दोनों सिस्टर्स थी. इनके बारे में, इन दोनों के बारे में यही कहा जाता है, दे यूज टू राइट टुगेदर, कोलेबरेटर. दे वर मीन्स जैसे कहते हैं एक दूसरे के पूरक हैं, साथ में काम करते थे. बॉर्न इन ओहियो, द सिस्टर्स मूव टू न्यूयॉर्क सिटी. इसके बाद ये न्यूयॉर्क में शिफ्ट हो गए एंड बिकेम वेल नोन लिटरेरी फिगर. शी रोट पोएम्स सच एज अ लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड एंड हिम्स. हिम्स मीन्स रिलीजियस पोएम, भजन जिसको कहते हैं, लाइक नियरर होम. वन स्वीटली solemn thoughts. She had been a strong advocate for women's right. Now we talk about the theme or central idea. The main theme of A Legend of Northland are the consequences of greed and selfishness and the importance of generosity and compassion. मेन थीम जो है वो बताया जा रहा है कि अगर कोई बहुत लालची है तो उसके क्या परिणाम हो सकते हैं, और सेल्फिश होना मतलब कोई लालची और सेल्फिश है तो उसके कुछ एडवर्स रिजल्ट हो सकते हैं. कॉन्सिक्वेंसेस मतलब परिणाम. इम्पॉर्टेंस ऑफ जेनरोसिटी एंड कंपैशन. द पोएम इलस्ट्रेट्स दैट सेल्फिश बिहेवियर इज पनिश्ड while the story of the old woman transformed into a woodpecker serves as a moral lesson about the negative outcome of being uncharitable.
पोएम के थ्रू माध्यम से ये बताया जा रहा है कि जो सेल्फिश बिहेवियर से मतलब है सिर्फ अपने बारे में सोचना, उससे पनिश किया जाता है। क्योंकि इस कहानी में एक ओल्ड वेमेन है जो बहुत ही सेल्फिश हैं और उनको फिर कर्स सेंट पीटर करते हैं और उन्हें वुड पेकर के रूप में बदल देते हैं श्राप के द्वारा। और यही एक मॉरल लेसन है जो बताया जा रहा है कि जब भी आप इस तरह की हैबिट, ग्रीड या जो है आप सेल्फिश होते हो, तो उसका परिणाम ये भी हो सकता है जब आप अनचैरिटेबल हो। अनचैरिटेबल मतलब किसी के लिए दया ना करना। इट टीचेस दैट ह्यूमन्स आर मेंट टू शेयर एंड हेल्प वन अनदर। इस पोएम के थ्रू पोएट बताना चाहती हैं कि जो है हमें एक दूसरे, ऑल ह्यूमन बींग्स शुड हेल्प ईच अदर एंड दैट अ पर्सन हु इज़ टू सेल्फिश विल फेस हार्डशिप। और अगर कोई सेल्फिश होने की कोशिश करता है तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं, जैसे कि उस ओल्ड लेडी को भुगतना पड़ा, वो वुड पेकर में बदल गई। अ लेजेंड ऑफ नॉर्थलैंड इज़ अ folk tale about greedy women who angered Saint Peter by refusing to share her cake। अब ये समरी में हम बता रहे हैं कि ये जो पोएम है लेजेंड ऑफ नॉर्थलैंड, ये एक कहानी है, पुरानी ऐतिहासिक कहानी है एक लालची औरत के बारे में जिसने सेंट पीटर को गुस्सा दिलाया बाय रिफ्यूजिंग टू शेयर हर केक। क्योंकि सेंट पीटर भूखे थे और वो उसके दरवाजे पे गए भूख के लिए, उन्होंने कुछ मांगा कि मुझे खाने को दे दो, लेकिन उस लेडी ने कुछ भी नहीं दिया, जो उसके पास होता वो खुद ही रखना चाहती थी। और एज अ पनिशमेंट सेंट पीटर गॉट एंग्री एंड ही कर्स्ड हर टू बी अ वुड पेकर। उसे एक वुड पेकर में कन्वर्ट कर दिया, चेंज कर दिया, ट्रांसफॉर्म कर दिया और उसको ये मतलब क्रोधित होकर उसको इस तरह का परिणाम दिखाते हैं और कहते हैं कि हरदम वो वुड को पैक करती रहेगी भोजन के लिए। जैसे उसने किसी को भोजन नहीं दिया, खाना नहीं दिया, तो अब वो सारी ज़िंदगी खुद हमेशा वुड पैक करती रहेगी और अपने आप के लिए हमेशा खाने का इंतज़ाम करेगी। तो ये कहानी जो है लालच और स्वार्थ के बुरे परिणामों को दिखाती है। चलिए अब स्टैंजा वाइज पोएम को समझते हैं। फर्स्ट स्टैंजा देखिए। अवे अवे इन द नॉर्थ लैंड वेयर द आवर्स ऑफ डे आर फ्यू एंड द नाइट्स आर सो लॉन्ग इन विंटर दैट दे कैनॉट स्लीप देम थ्रू। अवे अवे इन नॉर्थ लैंड मतलब अवे अवे से यहाँ मतलब है बहुत दूर, नॉर्थ लैंड में, नॉर्थ पोल के आसपास के एरिया के बारे में बात हो रही है, तो मतलब बहुत दूर। वेयर द आवर्स ऑफ डेज आर फ्यू, वहाँ पे दिन जो है वो बहुत कम होते हैं, जो दिन का ड्यूरेशन है वो कम होता है और रात का ड्यूरेशन बहुत होता है बिकॉज ऑफ द अर्थ्स लोकेशन। अर्थ जो है वो टिल्टेड है। अगर आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा अर्थ का जो रोटेशन एंड रेवोल्यूशन मोशंस के बारे में, तो आपको पता होगा कि अर्थ की जो टिल्टेड पोजीशन की वजह से नॉर्थ पोल में और साउथ पोल में सन रेज जो है वो पूरी नहीं पहुंच पाती हैं। तो जितनी पहुंचती हैं उतने ही ड्यूरेशन का दिन होता है एंड जो नाइट ड्यूरेशन है वो वहाँ ज़्यादा होता है। तो फिर से एक बार देख लीजिए। अवे अवे इन द नॉर्थ लैंड मतलब यहाँ से बहुत दूर नॉर्थ लैंड में। वेयर द आवर्स ऑफ डेज आर फ्यू मतलब दिन के घंटे, दिन का ड्यूरेशन बहुत कम है। नाइट्स आर सो लॉन्ग इन विंटर्स और विंटर्स में नाइट्स जो है वो बहुत ज़्यादा लंबी होती हैं। दैट दे कैनॉट स्लीप देम थ्रू, तो पूरा जितनी लंबी रात होती है उतना तो वो सो नहीं सकते, कुछ देर सोते हैं और कुछ देर फिर वो अपना काम करते हैं। सेकेंड स्टैंजा। वेयर दे हार्नेस द स्विफ्ट रेंडियर टू द स्लेजेस व्हेन इट स्नोज एंड द चिल्ड्रन लुक लाइक बियर्स कप इन देयर फनी फरी क्लोथ्स। अब वहाँ पे क्या करते हैं फिर देखिए कि वेयर दे हार्नेस द स्विफ्ट रेंडियर। रेंडियर हार्नेस मतलब होता है कि टाई करके, बांध के, वो स्लेज एक गाड़ी होती है जो बर्फ़ पे चलती है, तो स्लेज में रेंडियर्स को बांधते हैं और जब भी स्नो होता है, स्नोफॉल होता है, तो वो अपनी चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करेंगे एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए। और जो बच्चे हैं वो इतने क्यूट लगते हैं, जैसे लगता है कि बियर के बच्चे बियर कब्स जैसे लगते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो वुलेंस पहनते हैं
वो फरी क्लोथ्स होते हैं। फरी क्लोथ्स मतलब मेड ऑफ फर, एनिमल्स फर, एनिमल की स्किन से जो कपड़े बनाए जाते हैं तो बच्चे वही पहनते हैं और उसमें वो बड़े ही क्यूट और फनी लगते हैं। तो इसमें देखिए डिफ़िकल्ट वर्ड जो है स्लेजेस, स्लेजेस एक व्हीकल होता है जो स्नो पे यूज़ किया जाता है। और हार्नेस मतलब होता है टाई करना एक रस्सी से, जिससे कि उसमें से कुछ सामान ट्रांसपोर्ट किया जा सके। ये नॉट ओनली सामान, बच्चे या लोग भी उसमें ट्रैवल करते हैं। दैट इज़ द ओनली मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट ओवर देयर। स्विफ्ट मतलब होता है फास्ट, वेरी फास्ट। स्टेंजा नेक्स्ट थर्ड में देखिए, दे टेल देम अ क्यूरियस स्टोरी, आई डोंट बिलीव इट इज़ ट्रू एंड येट यू मे लर्न अ लेसन इफ़ आई टेल द टेल टू यू। अब जो वहाँ के लोग एल्डरली पीपल हैं वो अपनी अगले जनरेशन को एक स्टोरी बताते हैं, स्ट्रेंज स्टोरी बताते हैं। बट पोइट कहती हैं कि आई डोंट बिलीव इट इज़ ट्रू, उनको ये सही नहीं लगता कि ऐसा हुआ होगा। उनको लगता है, बिकॉज आज की दुनिया में अगर इसकी बात करें तो लगता है कि ये तो इमेजिनरी स्टोरी है। एंड येट, लेकिन फिर भी, यू मे लर्न अ लेसन, स्टोरी कैसी भी हो बट उससे लेसन जो है वो रियल है। सो इफ़ आई टेल द टेल टू यू, अगर मैं आपको वो कहानी बताऊँ तो आप स्टोरी चाहे बिलीव करें या ना करें, लेकिन लेसन जो है उससे मिलता है वो सच है। अब इसमें डिफ़िकल्ट वर्ड है क्यूरियस। क्यूरियस का मतलब होता है स्ट्रेंज, स्ट्रेंज स्टोरी। क्यूरियोसिटी मतलब जिज्ञासा। फिर फोर्थ स्टेंजा देखिए, वंस व्हेन द गुड सेंट पीटर लिव्ड इन द वर्ल्ड बिलो। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि वहाँ पे सेंट पीटर रहते थे, तो वो ऐसे दुनिया में भ्रमण कर रहे थे नीचे। एंड वॉकड अबाउट इट प्रीचिंग, लोगों को उपदेश दे रहे थे और पूरी दुनिया में वो घूम रहे थे। जस्ट एज ही डिड, यू नो, सेंट्स लोग ऐसा ही करते हैं, जगह जगह जाते हैं, प्रवचन देते हैं, उपदेश देते हैं। तो सेंट पीटर भी यही कर रहे थे। सेंट पीटर के बारे में देखिए एक इंट्रोडक्शन जो दिया है, एन अपोसल ऑफ क्राइस्ट, फॉलोअर थे। अपोसल मीन्स उनके फॉलोअर थे जीसस क्राइस्ट के, उनके शिष्य थे जो जगह जगह घूम के जीसस क्राइस्ट की प्रीचिंग्स बताते थे। प्रीचिंग्स मतलब जो रिलीजियस टॉक होती है, रिलीजियस बातें होती हैं, वो बताते रहते थे। अब स्टेंजा 5 में देखिए, ही केम टू द डोर ऑफ अ कॉटेज, वहाँ उन्हें एक कॉटेज दिखाई देता है, उसके दरवाजे पे वो पहुँच जाते हैं। इन ट्रैवलिंग अराउंड द अर्थ, दुनिया घूमते घूमते चारों तरफ घूम रहे थे, तभी उन्हें एक कॉटेज दिखा और उस दरवाजे पे पहुँच गए। वेयर अ लिटिल वुमेन वॉज मेकिंग केक, वहाँ एक शॉर्ट हाइट वाली वुमेन थी, वो केक बेक कर रही थी। एंड बेकिंग देम ऑन द हार्थ, अब देखिए हार्थ का पिक्चर बना हुआ है, उसमें वो केक बेक कर रही थी, फायर प्लेस जहाँ पे कुकिंग करना होता है। स्टेंजा 6 देखिए, एंड बीइंग फेंट विद फास्टिंग फॉर द डे वॉज ऑलमोस्ट डन, ही आस्क्ड हर फ्रॉम हर स्टोर ऑफ केक्स टू गिव हिम अ सिंगल वन। उन्हें ये पता चल गया था कि यहाँ पे वो केक बेक कर रही है और उसके पास रिसोर्सेज हैं, वो काफ़ी रखा होगा केक उसने। तो सुबह से वो फास्टिंग पे थे सेंट पीटर, कुछ खाया नहीं था, तो ही वॉज अबाउट टू फेंट, उन्हें भूख लग रही थी और बेहोश होने वाले थे भूख से। फॉर द डे वॉज ऑलमोस्ट डन, क्योंकि पूरा दिन ऐसे ही निकल गया था बिना कुछ खाए। ही आस्क्ड हर फ्रॉम हर स्टोर ऑफ केक्स, उन्होंने केक के स्टोर से उस लेडी से कहा कि मुझे कुछ खाने के लिए थोड़ा सा दे दो। फेंट मतलब वीक हो जाना, जैसे बेहोश हो जाना कोई चीज़ से। 7th स्टेंजा में देखिए क्या होता है जब उन्होंने केक मांगा तो, सो शी मेड अ वेरी लिटिल केक, दैट लेडी, उसने बेक किया बहुत छोटा सा केक। बट एज इट बेकिंग ले, जैसे ही वो बेकिंग कर रही थी, शी लुक्ड एट इट एंड थॉट इट सीम टू लार्ज टू गिव अवे। जब उसने देखा बेक्ड केक को तो उसे लगा ये तो बहुत बड़ा है, इतना नहीं देना चाहिए। देयरफॉर, अगला स्टेंजा देखिए, देयरफॉर शी नीडेड अनदर, इसलिए उसने दूसरा डो बनाया केक का, कम क्वांटिटी का, स्टिल अ स्मॉलर वन, बट इट लुक्ड व्हेन शी टर्न्ड इट ओवर एज लार्ज एज द फर्स्ट हैड डन। तो थोड़ा डो का भी बनाया और जब वो केक बेक हो गया तो उसने फिर से देखा उसे, फिर उसे वही बात लगी जैसे पहले लगी थी कि ये तो बहुत बड़ा है, इतना बड़ा नहीं दिया जा सकता केक। नीडेड मीन्स टू मेकिंग डो फ्रॉम द फ्लोर, फ्लोर से जो डो बनाते हैं केक बेकिंग के लिए उसे कहते हैं।
स्टेंजा 9 में देखिए, देन शी टुक अ टाइनी स्क्रैप ऑफ डो। अब उसने 2 बार देखिए उससे केक बड़ा लगा, तीसरी बार उसने बहुत थोड़ा सा मटेरियल बचा था, सोचा इसी का बना के दे देती हूँ। शी रोल्ड एंड रोल्ड इट फ्लैट, उसने रोल किया इस तरह से, ये अपना केक बनाने का जो भी उसका प्रोसेस था, एंड बेक्ड इट थिन एज अ वेफर। अब वो इतना कम मटेरियल का था तो वो वेफर जैसा थिन था, बेक किया, बट शी कुडंट पार्ट दैट, लेकिन वो उसे भी नहीं दे पाई, अपने से अलग नहीं कर पाई। स्क्रैप का मतलब होता है स्मॉल अमाउंट, मतलब बचा खुचा से जो बनाया था। तो अब देखिए फिर क्या होता है 10th स्टेंजा में, फॉर शी सेड माई केक्स दैट सीम टू स्मॉल व्हेन आई ईट ऑफ देम माई सेल्फ आर येट टू लार्ज टू गिव अवे, सो शी पुट देम ऑन द शेल्फ। अब जब केक फिर बेक हुआ, फिर उसने कहा मेरा केक तो अभी इतना छोटा है, वेन आई ईट ऑफ देम माई सेल्फ, तो ये तो बहुत ही छोटा, ये तो मैं ही खाऊंगी। आर येट टू लार्ज टू गिव अवे, मतलब मेरे लिए तो बहुत छोटा है लेकिन देना है तो ये बहुत बड़ा है। सो उसने वो भी नहीं दिया एंड उसने उसे शेल्फ पे रख दिया। कहने का मतलब कि इतनी बार उसने बेक किया और केक सेंट पीटर को खाने को नहीं दिया। स्टेंजा 11 में देखिए, देन गुड सेंट पीटर ग्रू एंग्री। अब जो सेंट लोगों को कहा जाता है कि वो बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन उनको इतनी भूख लगी थी और उस लेडी की एक्टिविटीज़ से वो बहुत गुस्सा हो गए। फॉर ही वॉज हंग्री एंड फेंट, क्योंकि वो भूखे थे और बहुत कमज़ोर हो गए थे, तो उन्हें बड़ा गुस्सा आया। एंड श्योरली सच अ वुमन वॉज एनफ टू प्रवोक अ सेंट, और इस तरह के नेचर वाली जो लेडी थी उसके इस व्यवहार से, एक्टिविटी से उनको गुस्सा आना स्वाभाविक था। नाउ स्टेंजा 12, एंड ही सेड यू आर फॉर टू सेल्फिश, तुम बहुत ही सेल्फिश हो, टू ड्वेल इन अ ह्यूमन फॉर्म, तुम इतनी सेल्फिश हो कि तुम्हें मानव जन मतलब इंसान के रूप में नहीं रहना चाहिए। यू हैव बोथ फूड एंड शेल्टर एंड फायर टू कीप यू वार्म, क्योंकि तुम्हारे पास खाने के लिए खाना है, शेल्टर है और अपने आप को गर्म रखने के लिए फायर है, लेकिन तुम इसके लायक नहीं हो, यू डोंट डिजर्व बिकॉज यू आर टू सेल्फिश। अब उन्होंने ये बात कही। फिर देखिए स्टेंजा 13, नाउ यू शैल बिल्ड एज द बर्ड्स डू, अब तुम चिड़िया की तरह रहो, जैसे कि चिड़िया अपना घोंसला बनाती हैं, अपना करती हैं, उस जैसे तुम रहोगे। एंड शैल गेट यू स्कैंटी फूड फॉर बोरिंग एंड बोरिंग एंड बोरिंग ऑल डे इन द हार्ड ड्राई वुड। अब तुम्हें बहुत, जैसे तुम बहुत थोड़ा थोड़ा करके सोच रही थी कि हमें देने के लिए और वो भी नहीं दिया, तो तुम्हें भी बहुत थोड़ा थोड़ा ही खाना मिलेगा और वो भी तुम्हें खुद निकालना पड़ेगा। बोरिंग का मतलब होता है डिगिंग, तो डिग करते रहो पूरा दिन करते रहो, तब जाके तुम्हें जो कुछ भी मिलेगा खाने को। तो यहाँ पे देखिए स्कैंटी का मतलब होता है वेरी लिटिल फूड, स्कैंटी, एंड बोरिंग का मतलब होता है एक्टिविटी, एक्शन ऑफ डिगिंग, फ्रॉम मीन्स होल करके, डिग करके कुछ निकालना। स्टेंजा 14 में देखिए, देन अप शी वेंट थ्रू द चिमनी, तो जैसे ही सेंट ने ये कहा, शी कुड नॉट स्पीक ऑल्सो, इमीडिएटली शी इज़ टर्न इनटू अ बर्ड, वो चिड़िया में बदल गई और उसे बोलने का कोई मौका ही नहीं मिला और चिमनी के थ्रू उड़ गई। एंड आउट ऑफ द टॉप फ्लू अ वुड पैकर, तो घर के ऊपर से एक वुड पैकर निकलती है और वो वुड पैकर वो ओल्ड लेडी ही थी, क्योंकि वो अब चिड़िया के रूप में बदल गई थी। स्टेंजा 15 में देखिए, शी हैड अ स्कारलेट कैप ऑन हर हेड, उसके सिर पे स्कारलेट मीन्स रेड कलर की कैप जैसा लुक था। दैट वॉज द लेफ्ट द सेम, वही जो आग जिसमें वो सब कर रही थी वो उसके सिर पे उसी कलर में हो गया। बट ऑल द रेस्ट ऑफ हर क्लोथ्स वर बर्न, तो उसके जो और कपड़े थे वो जल चुके थे उस आग में, तो इसलिए उसका बॉडी का कलर ब्लैक हो गया, मतलब सारे कपड़े जल गए आग में, तो उसका रेस्ट ऑफ द कलर ऑफ अ बॉडी बिकेम ब्लैक, कोयले की रंग के हो गए। स्टेंजा 16 देखिए, एंड एवरी कंट्री स्कूल बॉय हैज़ सीन हर इन द वुड, और हर जगह, हर देश के स्कूल के जाने वाले बच्चों ने उसे जंगल में देखा है, क्योंकि वुड पैकर पेड़ों के पास ज़्यादा मिलती है, उसको डिगिंग करते हुए दिखती है। वेयर शी लिव्स इन द ट्री टिल दिस वेरी डे, बोरिंग एंड बोरिंग फॉर फूड,
तो बच्चों ने उसे इसी तरह से देखा है कि जहाँ पे वो पेड़ पे तो रहती है, सब वहाँ पे डिगिंग करती रहती है, अपने खाने का कुछ ना कुछ इंतज़ाम करती रहती है। सो कंट्री का मतलब यहाँ पे देश से नहीं है, मतलब आउटसाइड जो भी एरिया है, कंट्री साइड, रूरल एरिया या ऐसी जगहों को हम कंट्री साइड बोलते हैं। अब बात करेंगे लिटरेरी डिवाइसेस की, बट उससे पहले राइम स्कीम के बारे में मैंने और भी प्रीवियस वीडियोस में आपको बताया था कि सेम साउंड जैसा आपको लगाना है। ए बी सी बी राइम स्कीम है, मतलब पहले ए साउंड जैसा, फिर बी साउंड है, फिर सी तीसरा साउंड है और बी, क्योंकि स्टेंजा 4 लाइन का है, 4 लाइन्स का है, तो 4 ही लेटर होंगे। आपको साउंड मैंने प्रीवियस वीडियोस में आपको बताया है। अगर आपको नहीं पता है तो प्लीज़ डू वॉच माई प्रीवियस वीडियोस वेयर आई हैव एक्सप्लेन्ड पोएम। एलिट्रेशन, रेपिटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड बहुत मिला है इस पोएम में। स्टेंजा 1 में जैसे दैट, दे, देम, द साउंड इज़ रिपीटिंग। स्टेंजा 2 में भी द साउंड है। स्टेंजा 3 में भी द साउंड बहुत बार है। तो यू कैन फाइंड आउट। नाउ यू शुड डू समथिंग विद योर ओन, बिकॉज मैंने आपको ये फिगर्स ऑफ स्पीच के बारे में भी एक वीडियो बनाया है, आप उसे देख सकते हैं। स्टेंजा 5 में दूसरा साउंड व साउंड है, विमेन, वॉज, इस तरह का साउंड है, और द भी है, देम, द, हार्द। स्टेंजा 6 में फ साउंड रिपीट हो रहा है। स्टेंजा 8 में स साउंड रिपीट हो रहा है, स्टिल स्मॉलर। स्टेंजा 9 में ट साउंड, टुक, टाइनी। स्टेंजा 10 seem, small, ये अगेन स साउंड इज रिपीटिंग। एंड स्टेंजा 13 में ब साउंड रिपीट हो रहा है। तो इस तरह से आप खुद देख के एग्जाम्पल दे सकते हैं। और अगर आपके एग्ज़ाम में 4 लाइन की पोएम एक्सट्रैक्ट में दी हो और उसमें लिटरेरी डिवाइसेस पूछ रहे हैं तो इट इज़ वेरी इजी, आप उसमें से ढूंढ सकते हैं इफ़ यू हैव अंडरस्टूड फिगर्स ऑफ स्पीच। एलिट्रेशन, रेपिटिशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड नॉट द लेटर। अगली फिगर ऑफ स्पीच देखिए, रेपिटेशन, जब कोई वर्ड या सेंटेंस या फ्रेज रिपीट किया जाए। जैसे स्टेंजा 1 में देखिए अवे, अवे पहली ही लाइन में 2 बार रिपीट हुआ है। देन रोल्ड वर्ड इज़ रिपीटेड, बोरिंग वर्ड इज़ रिपीटेड। तो ये सारी चीज़ें आप स्टेंजा वाइज मेंशन कर सकते हैं। अगली फिगर ऑफ स्पीच जो है वो है इंजैबमेंट। इंजैबमेंट मतलब होता है जब सेंटेंस एक लाइन में कंप्लीट ना हो और वो दूसरे लाइन में कंटिन्यू हो रही हो विदाउट एनी पंक्चुएशन मार्क। तो आप देखेंगे लाइन 3 एंड 4, इसी तरह स्टेंजा 2 में लाइन 1 एंड 2 एंड 3 एंड 4 दोनों बिना पंक्चुएशन मार्क के कंटिन्यूएशन में है नेक्स्ट लाइन में। स्टेंजा 3 लाइन 3 एंड 4, स्टेंजा 4 लाइन 1 एंड 2 एंड 3 एंड 4। तो ये सारा आप ढूंढ सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो फिगर ऑफ स्पीच है वो है सिमिली। सिमिली, इसमें कंपेयरिंग वर्ड्स यूज़ किया जाता है एज या लाइक। तो स्टेंजा 2 में देखिए द चिल्ड्रन लुक लाइक बियर्स कप। तो लुक लाइक वर्ड बच्चों को कब, बियर के कब से कंपेयर किया गया है और लाइक वर्ड की हेल्प ली गई है। बेक्ड इट थिन एज अ वेफर। तो ये स्टेंजा 9 में वेफर जैसा थिन, एज वर्ड है यहाँ पे। फिर स्टेंजा 15 में क्लोथ्स वर बर्न ब्लैक एज अ कोल, काले रंग के हो गए जैसे कि कोयला। तो ये थे फिगर्स ऑफ स्पीच। सो नाउ मैसेज ऑफ द पोएम। द सेंट्रल मैसेज ऑफ अ लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड इज दैट सेल्फिशनेस एंड ग्रीड लीड टू पनिशमेंट while compassion and generosities are virtues that should be practiced. मतलब हमें काइंड होना चाहिए, जेनरस होना चाहिए और दूसरों की मदद करते रहना चाहिए. यही हमें मैसेज इस लेसन से है. वी शुड नॉट बी ग्रीडी और सेल्फिश. So this is the big lesson. Hope you must have understood. The poem teaches us that greed always leads to punishment and a hard life. Now tell me in the comment, do you think the women learned the lesson? If this video helped you to understand the poem easily, please like button and subscribe so that you don't miss our next chapter explanation. Thanks for watching and keep studying.